पेट सफा, हर रोग दफा। आदाब, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या तनाज़े पर रोजाना की बुनियाद पर जारी पहले दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, यही जानने के लिए हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील पांडे ने हिंदू महासभा के वकील से खास बातचीत की। अयोध्या मामले पे सुप्रीम कोर्ट का आज पहला दिन, सुनवाई पूरी हो चुकी है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं जो फिलहाल हिंदू महासभा की तरफ से हैं। सर, आज पहला दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, हम इत्मीनान से सबको सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। आज माननीय अदालत ने शुरू में ही और सुबह में ही स्पष्ट किया कि जो भी पक्षकार है अपनी पक्ष बिल्कुल इत्मीनान से रख सकते हैं। अदालत को किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं है और उसी क्रम में निर्मोही अखाड़ा The ruling party believe in alchemy, not in science, but transmuting a state into Union territory would make Gogai Pasha and Mandrake the magician go green with envy, sir. This bill is a violation of Article 3. What does this do to the federal polity in India, sir? Sir, in one stroke, you have effaced, the ruling party have effaced the Sarkaria Commission, the Administrative Reform Commission, and the Raj Mannar Commission. I congratulate you. You have definitely taken a dishonorable step in creation of in a authoritarian state, a unitary authoritarian state, sir. Had this issue been done by a governor of a non-BJP, the BJP would have raised how governor is partial to the ruling party. But now when the governor is working on the diktats of the government, the BJP is quiet, sir. Sir, you have ruled on Article 35 and a challenge is presently pending in Supreme Court. And I trust that the constitutional bench of the Supreme Court will take up this gauntlet thrown by this government. I want to know from the government, sir, are you planning to implant people as the Israelis? Are you trying to imitate the Chinese? Or are you trying to create a Bantu stance as in apartheid South Africa? Sir, the Honorable Home Minister says it was a temporary provision. Sir, I cannot use the flowery language of Manish Tiwari and say, talk about an erotic thriller. But I will definitely say that I hope that the Honorable Home Minister will read erudite judgment of Justice Nariman in SBI versus Santosh Gupta, Supreme Court judgment in SBI Zafarullah, which these two Supreme Court judgments have more wisdom than the Honorable Home Minister. And in that judgment, the Supreme Court said, Mr. Honorable Minister, that the Article 370 is not temporary, it is a special status. Sir, BJP has picked up this tactic from the Nazi manual. What is it called in Nazis? It's called tactic of legality, to subvert constitutional principles and values, sir. Sir, the Jammu Kashmir people from last 90 years have been fighting for democratic rights. I want to know from the Honorable Home Minister, we have used military in Northeast. Why? Because the Northeast people said, we are fighting for our dignity. We have used military force. But despite that, this government, despite the Nagas not laying down arms, you are still talking with them. Why? And the Nagas are saying, give us oil and gas. You are ready for that? This will have a grave implication on the solving of the Naga problem. And I want to know from the Honorable Home Minister, sir, he assumes to be a man with iron fist. But may I remind him that the first Iron Man in the whole democratic or the undemocratic world was called Bismarck, the Iron Chancellor. Even Bismarck said that the iron fist must be used by a velvet. And the velvet was Article 370, which you have made it a hollow. And that is why I have to say, sir, that this government has proved that you are neophytes when it comes to statecraft. You have refused to understand where myth ends and where history begins. And I'm forced to say, sir, I'm concluding, I'm forced to say, sir, that the English proverb, for they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Sir, I want to know when Asaduddin Owaisi can go and buy agriculture property in Himachal Pradesh. I want to know when Asaduddin Owaisi can go to Arunachal Pradesh and Lakshadweep without a permit. I am sure, despite my opposition to all these constitutional arrangements, because I believe more in plurality and diversity, you are going to hand over all these Northeast to the corporate world because you believe in all these issues, sir. Sir, I want to end by talking about how, demographic change. What is there, sir? NRC, CAB? Why don't you release all those Kashmiris? Sir, your MPs are saying this is Diwali. Why can't you leave the whole Kashmiri people? Let them come out. Let them also celebrate. They cannot even use a cell phone.
They cannot even go out. What are you talking about? You have created Srinagar as some sort of a West Bank. That is unfortunate, sir. That is why I demand that the government release all prisoners, take away the curfew and ensure that communications are started. Last point, sir. What will happen on Eid? Eid is on Monday. Are you assuming that the Kashmiris should, instead of sacrificing lamb, they should sacrifice themselves? If you want that, I'm sure they'll do that. They have been doing that. And I conclude, sir. I conclude by what an erudite scholar wrote today in an article. He said BJP thinks that it is going to Indianize Kashmir, but instead what we will see is potential Kashmirization of India. You are doing a great disservice. Sir, there will be issues between Dogras and Punjabis in Jammu. There will be issues with Dalits also. There will be, and you mark my words, sir, there will be demand from Hindus of Jammu. Sir, I'm concluding, please, sir. There will be demand from Hindus of Jammu that why do we live in those two, Pir Panjal and Chenab Valley with Muslims. There will be migration, you mark my words, from Muslims of Kargil. You are underestimating. That is why, sir, I oppose this bill because this government is doing a disservice to Sardar Patel and Nehru. Thank you, sir. सर आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, आपका मूड भी अच्छा है, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे देना सर। सबसे पहले तो आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए पिछले 6 दशक से भी ज्यादा समय से हिंदुस्तान का प्रत्येक तबका इस धारा 370 को और 35A को तोड़ने की डिमांड कर रहा था। 50-60 साल तक कांग्रेस की सरकारें बनाई और नेहरू जी ने जो भूल की थी उस भूल को सुधारने का इनको मौका भी दिया। लेकिन मैं बधाई देता हूं गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हमें तो खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 370 हटेगी। मैंने सोचा दिवाली तो आएगी 370 हटने में, लेकिन आप तो पहले ही सत्र के अंदर, और अध्यक्ष जी आपको भी बधाई कि इतना लंबा सत्र चल। तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल पर बहस के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने भी खिताब किया और सख्ती से उन्होंने इस बिल को अपोज किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर को मगरबी किनारे में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, अयोध्या तनाज़े पर रोजाना की बुनियाद पर जारी पहले दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में बात की सुशील पांडे ने हिंदू महासभा के वकील से। अयोध्या मामले पे सुप्रीम कोर्ट का आज पहला दिन, सुनवाई पूरी हो चुकी है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं जो फिलहाल हिंदू महासभा की तरफ से हैं। सर, आज पहला दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, हम इत्मीनान से सबको सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। आज माननीय अदालत ने शुरू में ही और सुबह में ही स्पष्ट किया कि जो भी पक्षकार है अपनी पक्ष बिल्कुल इत्मीनान से रख सकते हैं। अदालत को किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं है। और उसी क्रम में निर्मोही अखाड़ा, जिनका की वाद संख्या 3 है, उन्होंने अपनी दलील रखनी शुरू की है। उन्होंने अपनी दलील में 1855 से लेकर के पूरी वाकयात अदालत के समक्ष रखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 1934 के बाद से किसी भी तरह का नमाज अदायगी उस विवादित परिसर में कभी मुसलमानों ने नहीं किया है और उनकी सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण आगे भी जारी रहेगा। उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका कल भी दिया गया है। आज पूरे दिन उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटेशन पर अपने पोजीशन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए, दलीलें दी हैं और कल भी उनकी दलीलें जारी रहेगी। ये भी कहा गया निर्मोही अखाड़े की तरफ से कि सीता की रसोई, राम चबूतरा और गर्भगृह पर उनका शुरू से अधिकार रहा। हाँ, ये स्पष्ट उन्होंने कहा कि उनका पोजीशन था सीता की रसोई और जो श्री राम का चबूतरा और आउटर कोर्ट यार्ड गर्भगृह में उनका स्वामित्व था। वो पूजा अर्चना करते थे और उनका जो ट्रस्ट है वह उस पर काबिज था। इसके साक्ष्य भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और देखना है अदालत उस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज निर्मोही अखाड़े की तरफ से जो बहस है वो फिलहाल कर ली गई है। कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा और निर्मोही अखाड़ा अपनी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर समाअत जारी है और लगातार ये जो अहम मसला है ये मौजूए बहस भी बना रहा है, आज आपसे अभी तक का अपडेट चाहेंगे, किसने क्या कुछ वहां पर कहा? देखिए, किसी ने क्या कुछ कहा कि आज इस बात की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज निर्मोही अखाड़ा को अपने दलाइल रखने थे। आज उन्होंने ही अपनी दलीलें रखी हैं। हालांकि एक मरतबा राजीव धवन ने कुछ इंटरवीन करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उनको सीधे तौर पर रोक दिया और कहा कि आपको जब मौका दिया जाएगा, आपका वक्त आएगा, तब आपका मौका सुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज निर्मोही अखाड़ा ने पूरी जगह पर अपना दावा किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 1853 में जब ये मामला उठकर सामने आया था तो 1859 में ही, क्योंकि जो राम चबूतरा था उस पर विवाद नहीं था, वहां पर उनको इजाजत दी गई थी और वो देखरेख करते रहे हैं, इसलिए मिल्कियत का दावा उनका अपना है। जबकि दूसरे लोग जो दावा कर रहे हैं वो सिर्फ पूजा के यानी कि इबादत के हक का दावा कर रहे हैं, लेकिन मिल्कियत का दावा वो सिर्फ उनका है। इसके बीच में सुशील जैन ने एक दलील, जो निर्मोही अखाड़ा के वकील है, उन्होंने ये भी दी कि झांसी की रानी को भी निर्मोही अखाड़ा ने ही बचाया था और वो वहां पर मंदिर में आई थी। तो एक तरह से निर्मोही अखाड़ा ने आज पूरे तौर पर यह दलील दी कि ये मिल्कियत का उनका दावा है, और दावा इस बुनियाद पर है, जब अदालत ने उनसे पूछा कि मिल्कियत के लिए दावा कर रहे हैं क्या कब्जे के लिए दावा के लिए आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मिल्कियत का दावा है कब्जे की बुनियाद पर, क्योंकि वो सालों से इसकी देखरेख करते आ रहे हैं। उन्होंने हालांकि कोई लिमिट नहीं बताई कि कब से वो करते आ रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहा कि वो देखरेख करते आ रहे हैं। उन्होंने अदालत से यह भी मांग की कि जो अदालत के जरिए से वहां पे एक रिसीवर अपॉइंट किया गया है उसको हटाया जाए और जो पूरा जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो पूरी जगह है वो उसको निर्मोही अखाड़ा के हवाले कर दिया जाए। तो आज इस तरह से निर्मोही अखाड़ा लगातार जो है वो अपनी दलाइल देता रहा है और कल भी ये दलीलें जारी रहने वाली हैं। देखना ये होगा कि कल किस तरह की दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद राम लल्ला यानी कि हिंदू महासभा जो है वो अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे जो अपील हैं करने वाले हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो आज पूरे दिन भर की ये कार्रवाई चलती रही, लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि मैराथन जो है समाप्त हुई है इस मामले की। सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो है समाप्त होती रही, सिर्फ बीच में जो है दोहराने का एक वक्फा रहा। उसके बाद उसके अलावा लगातार जो है इसकी समाअत जारी रही। तो हिना कहना चाहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समाअत की है और इससे लगता है कि इसको पूरे तौर से सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने समाअत के दौरान कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी बात रखिए, पूरे तौर से रखिए। तो पूरे तौर से बात सुनी जाएगी, कोई जल्दी नहीं है और तफसील के साथ सुनी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इस मामले में जो भी वो फैसला आए उसको सबको सुनकर सबके दलाइल को सामने रखकर ही वो दिया जाए। तो आज ये पूरे दिन की समाअत हुई है। जी खुर्रम, हमने इससे पहले भी देखा था, जब से ये मामला जो है ये सुर्खियों में रहा है कि कई सफात हैं जिनके एक एक नुकात पर बातचीत होना है, जिनको एक एक बहुत ही बारीकबीनी से जिनका मुआयना किया जा रहा है, कहीं भी कोई लूप होल नहीं छोड़ा जा रहा। तो रोजाना की जो समाअत है ये इसी सिलसिले में बेहद कारआमद साबित होगी कि हर चीज बारीकबीनी से देखी जा रही है। देखिए, इसमें हजारों सफहात हैं और दस्तावेजात हैं, मिल्कियत के जो पुरानी मिल्कियत के कागजात हैं वो भी हैं। इसके अलावा कहना चाहिए आसार कदीमा ने जिस तरह से खुदाई की है वो भी है। लेकिन आज जिस तरह से निर्मोही अखाड़ा ने अपनी दलीलें रखी हैं उसमें एक बात उन्होंने जो खास तौर से ये कही कि 1949 के बाद से वहां पर नमाज नहीं हो रही, इसलिए इस जगह पर मुसलमानों का कोई दावा नहीं है, ये मस्जिद नहीं रही, क्योंकि मस्जिद वो होती है जहाँ पर नमाज होती है। उन्होंने ये भी दावा किया 1934 में 5 वक्त की नमाज जो होती थी वो बंद कर दी गई थी और 1949 में जुमे की जो नमाज होती थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि 23 और 24 दिसंबर 1949 को मूर्तियां वो रख दी गई थी बाबरी मस्जिद के अंदर और उसके बाद फिर ये तनाज़ा बढ़ता गया और बाद में फिर पूजा की भी इजाजत दे दी गई थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा बाज़ाब्ता तौर पर इसमें
क्योंकि फरीक बन गया था और जी। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया था। हालांकि जो दूसरे फरीक हैं वो 1990 की दहाई में 1989 में यानी कि रामलला हिंदू महासभा जो है वो विश्व हिंदू परिषद इस मामले में वो फरीक बना है। तो निर्मोही अखाड़ा वो का ये कहना है कि 1853 में और 1885 में जब ये मामला अदालत तक गया था, क्योंकि वो खुद इस मामले को लेकर गए थे, उनसे जुड़े हुए धर्मगुरु थे वो लेकर गए थे, इसलिए मिल्कियत का हक उनका है। हालांकि इस पर जो है मिल्कियत का दावा रामलला ने भी किया है, जिस तरह से 2010 में हमने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जी। था। तो बहरहाल रोजाना की समाअत जारी है और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खुर्रम शहजाद, तफसीली जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लगातार तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक और अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने की पुरजोर मुखालिफत की और मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जज्बाती हो गए। And how are you doing health-wise? I'm not too well. I have a problem of blood pressure, I have a problem of heart, I am also a transplanted patient. And I am arrested in the house. Whatever the Home Minister says is totally baseless. I was not allowed to leave. Nobody is allowed to come into my house. I have a DSP posted outside. How dare anybody comes? So much so that between my daughter's house and sister's house, the door that was there, on the very first day lock was put on it. We had to shout and say, what is this happening? What do you want to do? And this has happened to Sheikh Mohammed Abdullah's son, Yes. who handed over Jammu and Kashmir to Government of India, Yes. who chose secular India to religious Pakistan. Yes, yes. You feel hurt today? I feel, I don't have words to say. You're crying, But how Dr. can Saab. India do this to a state which joined the nation on the basis of secular India, democratic India? This is not democratic India. Will you go to the This is grave of dictator. your father and weep and cry there? I'll cry everywhere because it's something we never thought will ever come to our people. Never. It has never been part of our life. We gave our life to stand with this country. Can they forget? How many of our people have died to stand with them? Where were they in 96 when we fought the election? Were there flags flying here? It was I who stood up. And in 2002 they could fight election, every one of them. Is this what we deserve? 370 is gone. 370 is gone. Can you imagine this? I have never thought of it. In my wildest dream I could never have thought they could do this thing, which is a constitutional guarantee to the state. Not to Farooq Abdullah alone, to the people of the state. And you think it's a treachery, it's cheating, what has It is happened? absolutely dictatorship, I would say. It's not democracy. How are you going to fight this now? We will see every other avenue that is available to us. Last Leave us time- to take that. Last time when you and your son met Prime Minister, the Prime Minister, what did Prime Minister tell you? Did you get a whiff of this is coming? Not at all. Prime Minister was extremely nice. There were three of us. Myself, my son, Justice Masoodi. He was extremely good. None of these things ever were supposed to be on the card. We requested him, please see that nothing is done. We said that Yatra is going on very well. The governor himself is saying everything is fine. Visitors are everywhere. My friends' children are in Gulmarg. So what is this about, what has happened today? This was not even, I couldn't even dream of this. 3 times Chief Minister, 1 time Chief Minister, your son, and your Minister in central government. Cabinet Minister in center government, and you're kind of jailed. You're jailed. Totally What is jailed. happening? You're a separatist, new separatist Totally now. jailed. Do you think you're totally a new jailed. separatist in the eyes of Government of India today? We all, according to them, being Muslims, are separatists.
उधर करगिल में आज हड़ताल की जा रही है। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ करगिल टाउन और सब डिवीजन द्रास में हड़ताल की गई। करगिल की सियासी मजहबी जमातों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी, जिसकी वजह से दुकानें और तालीमी इदारे बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी कम ही देखी गई। अहम मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। करगिल के लोगों का कहना है कि वो मरकज के फैसले के मुखालिफ हैं। लोगों के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू में ज़ेर तालीम करगिल के तलबा की सलामती को लेकर उन्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है। इस हड़ताल की वजह से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटी को लेकर अगर हम लद्दाख में हालत की बात करें, खासकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो कल शाम 6-7 बजे यहाँ जितने भी सियासी और मजहबी जो इदारे के हेड ऑफ जो लीडर्स होते हैं उनका यहाँ मीटिंग चला और रात को 1-2 बजे ये फैसला लिया गया, जो फैसला दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस पर पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ हड़ताल होगा। तो बेशक यहाँ बाहर से फोर्सेस लाए गए हैं, मगर हालात नॉर्मल होने की वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जितने भी ट्रूप्स हैं वो JNK पुलिस के ट्रूप्स है, बाहर से कोई भी फोर्सेस यहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। ले जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, वो यूनियन टेरिटरी के साथ है। अगर हम कारगिल की बात करें जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वो 370 के साथ है और कश्मीर के साथ। 370-35A ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था और हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में एक ब्रिज था, एक रिश्ता था। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बाइफरकेट किया गया है, ये काबिल मजम्मत अमल है। मैं अब भी कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि वो ऐसा रास्ता ना अपनाएं जहाँ उन्हें अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ नज़र ना आए। और दफा 370 की मनसूखी के बाद आज दूसरे रोज भी टनमर्ग, मांगाम, पटन, नाराबल और दीगर इलाकों में दफा 144 नाफिज है। सड़कों से ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही। दुकानें और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। सड़कों पर जगह जगह खारदार तार बिछा दी गई है। मांगाम में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए दफा 144 नाफिज होने से मुताल्लिक लोगों को जानकारी दी रही। सड़कों पर नीम फौजी अमले गश्त कर रहे हैं। यहाँ अगरचे चंद मुकामात से मामूली पथराव की भी इत्तलात है, ताहम मवासलाती निज़ाम बंद होने से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। 370 की मनसूखी के बाद आज वादी के साथ साथ गुलमर्ग, टंगमर्ग, यहाँ मागाम, नारबल और पटन और इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी एहतियाती तौर पर यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। इस वक्त हम श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे हम इस वक्त मौजूद है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे खारदार तार बिछाई जा चुकी है और सिक्योरिटी अमला जो है यहाँ पे तैनात है। जगह जगह यहाँ पे पुलिस, नीम फौजी दस्ता, ITBP, CRPF जगह जगह तैनात है। साथ साथ जो फौज है, पुलिस है, वो सड़कों पर गश्त कर रही है और लोगों को एक जगह जमा होने नहीं दिया जाता है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले पर लेह में खूब जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कई कारकुनों और दीगर अफराद ने सड़कों पर निकलकर खूब खुशियां मनाई, आपस में मिठाइयां तकसीम की। कई लोग रक्स करते नजर आए। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट थिपसिंग तावुंग, LBA के सदर PT कुंजिंग, मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाजी रियाज, कांग्रेस कमेटी लेह के सदर और दीगर अफराद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लद्दाख को UT बनाने का खैर मकदम किया। बेशक जो घोषणा आज हुई है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ये हम लद्दाख के लोगों की जो एक सपना था, एक एस्पिरेशन था हम लोगों का, उसका पूरा करने के लिए सबसे बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से अब उठाया गया है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं। तमाम लद्दाख की आवाम को मुबारक देना चाहता हूँ, खासकर लद्दाख के लीडर जी श्री तुफ्तान साहब और दरसे MP हमारा और जोरा साहब, संपल साहब, जितना पुराना लीडर, जितनों को मुबारकबाद देना चाहूँ कि हमें UT मिला और UT देने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब और अमित शाह को भी मुबारक देना चाहता हूँ। हम उनका शुक्रगुजार है कि लद्दाख के लोगों का जो सोच रहा है कि हम केंद्र से नजदीक जाएं। लद्दाख के लोग हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले में लोगों में से हैं और हमेशा जब जब लद्दाख की सरहद पर दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख की आम जनता ने, पूरे खित्ते के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर सरहद की सुरक्षा की है। मैं सबसे पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से पूरे लद्दाख के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो डिसीजन लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका सपना हमने बहुत पहले देखा था और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इस इशू को 1949 से हमने ये उठाया था
और LBA के अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स इस यहाँ पे बैठे उन सब का भी ये एक बहुत ही एक टॉप प्रायोरिटी वाला एक डिमांड था और आज हमें खुशी है कि इस डिमांड को आज पूरा किया गया। और तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS ने 370 को हटाने की हुकूमत के फैसले की हिमायत की है। उन्होंने लोकसभा में 370 को हटाने की पार्टी की जानिब से हिमायत की। Historic bill brought to a historic decision taken by a Prime Minister and Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji. I raised to support this bill on behalf of our party तेलंगाना राष्ट्र समिति। जो भी हिस्टोरिक का जो ब्लंडर्स होता है उसको इसी तरह से जो है करेक्ट भी करने का जरूरत पड़ता है और उसको करेक्ट करने के लिए बिल आया है, बहुत खुशी का बात है। और वहीं दफा 370 को हटाने की YSRCP ने भी हिमायत की है। YSRCP के लीडर रघुरामा कृष्णा राजू ने पार्टी की जानिब से 370 को हटाने का खैर मकदम किया। In the history of India, where the unification of the country has really happened, and the dream of Sardar Patel ji through Narendra Modi ji, it has seen. That is, today is going to be an historic day, like August 15th. This is also going to be an historic day. And in the bill itself, Article 370. It was very clearly mentioned it was a temporary transitional special provision. I don't know why people are making an issue out of this when it is abrogated. There is no need to make such an issue out of it. उधर तेलुगुदेशम पार्टी ने दफा 370 पर लोकसभा में इजहार ख्याल किया। पार्टी लीडर गल्ला जयदेव ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल 2019 की तायद करने का ऐलान करती है। Support the Jammu and Kashmir reorganization bill, and our leader Sri Nara Chandrababu Naidu Garu and our Telugu Desam party support the proposed reorganization of the state of Jammu and Kashmir. What I wanted to say is what supplemental, incidental and consequential measures that the Honorable Home Minister is going to take for J&K is one thing we need to know, sir. Finally, sir, my final appeal is to restore normalcy in J&K at the earliest, and to make all efforts to bring confidence to the people of J&K that they can live in peace and with progress, prosperity and dignity. Thank you, sir. और दफा 370 हटाने पर हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने मसरत का इजहार किया। कश्मीरी पंडित बरादरी ने हैदराबाद के इलाके दुर्गम चीरू पर जश्न मनाया। पुलिस की जानिब से उन्हें अवामी मकामात पर जश्न मनाने की इजाजत अलबत्ता नहीं दी गई। हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम इतने प्रसन्न और खुश हैं कि आज मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा हमारा। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए एक वरदान है। ये मोदी साहब का दिया हुआ एक वरदान है पूरे देश के लिए। आज उन्होंने अपना युग धर्म निभाया है और ये युग पुरुष कहलाए जाएंगे। हमारे मन में वापस से ये आशा पैदा हो गई है कि हम वापस कश्मीर जा सकते थे। कश्मीर हमारे पूरे देश का, हिंदुस्तान का हिस्सा बना है और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे जिस चीज़ का विवाद 70 सालों से चल रहा था, आज हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने उस फैसले को एक ही झटके में पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो हम इससे बहुत खुश हैं और मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हैदराबाद की ओर से हम, हमारी टीम, हम लोग कश्मीर घूमने जाएंगे। देखिए, पिछले 30 साल से मैं कई जगहों पे ये बात करता हूँ कि हमें वापस जाना है, लेकिन वो उम्मीद कभी मेरे को रियल नहीं लगती थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब कुछ दिनों की बात है कि मैं वापस अपने घर जाऊंगा और अपने घर में रहूंगा। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो उन्होंने किया कि एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया जम्मू कश्मीर को, उससे ऐसे हालात पैदा होंगे अब जहां पे सेक्युलरिज्म वापस जम्मू कश्मीर में वापस आ पाएगा। क्योंकि मैं अकेले घर नहीं जा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पूरा भारत मेरे साथ वापस घर जा रहा है। लगते थे कि हम वापस जाएंगे या ऐसा दिन आएगा या आर्टिकल्स हटेंगे, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, मगर मोदी जी ने ये करके दिखाया। इस पे हमें बहुत गर्व है।
मैं कभी कश्मीर गई नहीं हूँ बिकॉज़ मेरे पापा ही केम आउट व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारी फैमिली वहाँ पे कैसे रहती थी, क्या था, हमारा घर है वहाँ पे, मैंने कभी देखा ही नहीं है. तो आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड गो बैक टू माय रूट्स व्हिच आई हैव नेवर हैड सो फार. बहुत महत्वपूर्ण फैसला है. इनफैक्ट शादी डेफिनेटली वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अब इससे आगे जाएगा. प्लस एक भारतीय होने के नाते अगर हम अपने ही देश में ज़मीन नहीं खरीद सकते, किसी राज्य में हम वहाँ के नागरिक या हम वहाँ के कानून के अनुसार एक आउटसाइडर कहलाते, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं थी. आज ये कानून ध्वस्त होने से हम अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं. और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़्मा शाकिर ने आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ करार दिया. उज़्मा शाकिर का मानना है कि अगर ये इक़दाम कश्मीरी अवाम की बेहतरी के लिए है तो इसके मुतालिक पहले अवाम को क्यों इत्तला नहीं दी गई. उज़्मा ने कहा कि कश्मीर के हिंदुस्तान में इल्हाक़ खुद कश्मीरी अवाम की मर्जी से हुई थी. उज़्मा शाकिर ने आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद कश्मीर की तेज़ रफ्तार तरक्की के इम्कानात पर शक का इजहार करते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में गुर्बत का खात्मा न हो सका तो ये कश्मीर में किस तरह मुमकिन होगा. करना ही था, ख़त्म करना ही था. आपको कश्मीरी लोगों की इतनी परवाह थी, आपको 1 to 1 बैठना था डिबेट में, आपको उनको कंसिडरेशन में लेना था. दे वुड हैव वेलकम्ड योर सजेशन ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ एजुकेशन, ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, ऑफ जॉब्स. आप 2 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस करें हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान को के लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे, आप कश्मीरियों को क्या देंगे? कश्मीर के लिए आप क्या करेंगे? आपको तो कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो वहाँ से सारे टूरिस्ट को भगाए, आप तो वहाँ से सारे अमरनाथ यात्रियों को भगाए क्योंकि वो हिंदू हैं. कश्मीरी सारे मुसलमान हैं. दिस शोज की यू आर एंटी मुस्लिम, यू आर एंटी माइनॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट है लद्दाख में, फिर गिने चुने कुछ सिख कम्युनिटी है और क्रिश्चियंस है. तो वो पूरा बेल्ट जो है वो माइनॉरिटी का बेल्ट है. इसका मतलब अब एंटी माइनॉरिटी है, आप एंटी मुस्लिम है. आप अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को, सबको सुरक्षित कर रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं. फिर यहाँ के KCR जी जो हैं उन्होंने भी, और आंध्रा के जो एक्स CM थे उन्होंने भी क्या है, स्टूडेंट्स को वापस बुला लिए, सेफ साइड कर लिए, बाकी कश्मीरियों को छोड़ दिए मरने के लिए. उन बेचारों को खबर ही नहीं है कि उनके सर के ऊपर से जो है, हिंदुस्तान के सर के ऊपर से ताज ख़त्म हो गया. और चलिए एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट. जो बोल रहे हैं कि इस 370 को हटाने के वक्त या 35A को हटाने के वक्त वहां के असेंबली का सम्मति नहीं लिया है. लेकिन मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब जम्मू कश्मीर के बारे में भी जब 1954 में ये जो धारा 370 का अमल करने का निश्चित हुआ, तभी भी दुर्भाग्य से संसद थी, लेकिन संसद में इसके ऊपर चर्चा या बहस हुआ ही नहीं था. लेकिन तो उसके और भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के एक वहां के जिम्मेदार अधिकारी जिनका नाम था KB जंदियाल, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी को भी 35A का अमल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन तो भी जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त जबरदस्ती से राष्ट्रपति जी का साइन लिया, सिग्नेचर लिया, वैसा इस वक्त में भी राष्ट्रपति के माध्यम से उनको गैर कानूनी सिग्नेचर करना पड़ा. और ऐसा जब गैर कानूनी कारोबार 1954 में हुआ था, अभी तो वैसा है ही नहीं. ये वहाँ राष्ट्रपति शासन चले या संसद सार्वभौम है, और इसलिए सभापति महोदय मैं एक ही विनंती करता हूँ, सिर्फ एक लास्ट का 1.5 मिनट मुझे चाहिए कि नक्शे से जम्मू कश्मीर जो दुनिया में जानी जाती थी, अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट से पूछोगे तो शायद अपनी कंट्री के उसको कम डिस्ट्रिक्टों के ये स्टेटों के नाम याद होंगे, लेकिन इंडिया में जम्मू कश्मीर उसको मालूम होगा. बिल क्लिंटन से अगर पूछोगे तो शायद उसको पूरी कंट्री के नाम मालूम होंगे,
लेकिन पूरी दुनिया में शायद उसको एक ही स्टेट का नाम मालूम होगा, जम्मू कश्मीर। तो एक इंटरनेशनली नोन, दुनिया में जाने वाली स्टेट, अपने कल्चर के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाने वाली स्टेट को आप दुनिया के नक्शे से और हिंदुस्तान के नक्शे से उसका स्टेट का जो दर्जा ही खत्म होते हैं और एक यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली की तरह उसको बनाते हैं। ये सब कुछ गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि यूनियन टेरिटरी उनके कब्जे में रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका रहेगी, जमीन पे उनका कब्जा रहेगा। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो पहले ही वैसे होम मिनिस्ट्री जब से आतंकवाद आया था तब से उसका इस्तेमाल किया जाता था। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम लोगों ने भी उसका उपयोग किया है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन पुलिस जो थी कम से कम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी, अब पुलिस भी, लोकल पुलिस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होगी, ज़मीन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होगी, इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र भी दिल्ली से होगा, पटवारी का ट्रांसफ़र भी दिल्ली से होगा, बीडीओ की अपॉइंटमेंट भी दिल्ली से होगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को आप नज़दीक ला रहे हैं कि उनको आप पुश बैक कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने किया है वो शायद ऐसी गलती की है शायद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं की है। तो लेकिन कांग्रेस भी डिवाइडेड दिख रही है, काफी सारे कांग्रेस 134 साल पुरानी पार्टी है। ये 3-4 लोग स्टेटमेंट देने वाले से कांग्रेस नहीं बनती है और उनकी ओपिनियन नहीं बनती। बात The President is having ample authority to issue a notification as issued on 5th August 2019 yesterday, and by which the notification, if you kindly examine, sir, clause 1 and clause 2 of the notification, it is absolutely correct. The President, His Excellency, the President of India is having the right to modify, make alterations or even revoke Article 370 by invoking Article 370 clause 1 subclause D. I do appreciate. But sir, if you kindly go through in the same notification, where the Honorable President is amending the Constitution of India, Article 367. So how the President is having whether the President is having the power to amend Article 367 of the Constitution? As per 370 clause 1 subclause D, the President is empowered to amend or make any changes in 370. Sir, please, I've just started. I'm confining to the provisions and confining to the bill. I'm not going to any political issues. Sir, kindly enlighten us. The Honorable Home Minister may kindly enlighten us whether the President of India is having the power to amend the Constitution, Article 367. Because by virtue of, and 4 clauses have been incorporated as clause 4. That is because in the notification clause 4, by which the clause D, the last clause says that Constituent Assembly of Jammu and Kashmir means, or it shall be read as, Legislative Assembly of the state. How could it be? Sir, my point is the President or only the Parliament is having the right to amend the Constitution through the procedure of Article 368. Yes, the government has the power. But only by virtue of Article 368, this provision can be made. The President has no authority. That is why I am saying that the President is ultra-vires his powers. And number 2, sir, and kindly see this Constituent Assembly, this has come in the year 1951. This has come in the year 1951 and it was up to Constituent. Sir, please, it was just 3 minutes I have taken. Sir, the Constituent Assembly has come into existence in the year 1951. It was there up to 1957. And 57 to 2019, this provision has not been touched upon. That means that provision has become redundant. The redundant means the doctrine of destitution will be applicable. That means a provision which is redundant, out of which you cannot draw a power out of which a provision which is redundant, because the doctrine of destitution will be applicable. Therefore, the entire process done by the government in promulgating the notification dated 5th August as well as introducing the bill before the House is ultra-vires the Constitution, and I strongly oppose, and also it is violating the federal
moral character of the Constitution, and also, sir, the ramifications of this constitutional amendment or this amendment to this Article 370 is very fatal. Once again, I would like to say that it is a monumental, historic mistake committed by the government, for which in future the government has to learn from the history. Otherwise, it will be very fatal. With these words, I oppose. Thank you very much, sir. माननीय उपसभापति जी, बहुत देर से इस बार को सुन रहा हूं, बार बार सवाल कि अगर आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है तो जो पास करना है कर दीजिए। तो क्या ब्रूट मेजॉरिटी उनकी कृपा से आई है क्या? अरे देश की जनता के सामने हम गए, अपने मुद्दे लेके गए, और देश की जनता ने 14 से भी अधिक वोट से हमको जिता दिया, और उसमें ये भी कहा था कि 370 बदलेंगे। इसलिए हमसे जम्मू कश्मीर की सहमति की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की सहमति लेकर के आए हैं कि हमें इसको बदलना है। एक बात तो हमें यह कहना है सर, हम अभी तक सुन रहे हैं तो 51, 49, 52, 53, 56, 70 साल में क्या खोया क्या पाया 370 पर, इस पर कुछ नहीं सुन रहे हैं सर। मैं एक कानून देख रहा था, बाकी कानून की बात तो बहुत है सर। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है सर, 1988। मंत्री, नेता, पदाधिकारियों करप्शन को रोकने का। ये क्या लिखा हुआ है? इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बताएं, 2 परिवार 3 परिवार, इस कानून को लगाने में क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं लगाया? और आज सर मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री का और अपने गृह मंत्री का, इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं सर। इसमें 106 सेंट्रल एक्ट को जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। किसने आपको मना किया? कश्मीर के आइन की बात, किसकी बात? सर इसमें राइट टू एजुकेशन भी है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। तो मालूम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कश्मीर में लागू नहीं था, जो आज लागू किया जा रहा है। और एक मुझे बहुत पीड़ा है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों ने 93 में एक बहुत अच्छा कानून पारित किया था सर। उस कानून का नाम क्या था सर? जो सर पे मैला ढोते हैं उसको प्रोहिबिट करने का कानून था। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्सकैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। इसको भी आपने कश्मीर में लेने नहीं दिया। क्या कारण था? द मोस्ट ह्यूमेन एक्ट प्रोहिबिटिंग द मोस्ट इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग लैट्रिन ऑन द हेड, उसको भी कश्मीर में आपने नहीं लगने दिया। देयरफॉर इसका कभी कभी जवाब देना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक बिल भी लगेगा, चिंता मत करिए आप। सर बार बार एक बात याद आई सर कि डॉक्टर जोशी जी अध्यक्ष थे सर एकता यात्रा से, उसमें हमें भी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, माननीय गिरिराज जी भी मेरे साथ गए थे सर, भाई लोग गए होंगे। बनिहाल के पास हम लोग की बस रोक दी गई सर। हम काहे के लिए जा रहे थे सर? लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। बहुत धरना दिया सर। गिरिराज जी तो सड़क पर धरने पर बैठ गए, पानी पड़ रहा था। उनका गुस्सा उस समय भी तो कुछ ऐसा ही था जो आज है, लेकिन वो देश हित के लिए गुस्सा किया था। अभिनंदन करूंगा उनका। हम लोग 2 घंटे भीगते रहे। अरे भाई तिरंगा लेके जा रहे हैं, जाने दो। देश का तिरंगा 15 अगस्त पर, उस समय 370 कहां था भाई? 370 में अगर तिरंगा फहराने पर पाबंदी है तो इस 370 को नहीं रहना चाहिए। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं अपने प्रधानमंत्री के साहस का अभिनंदन करूंगा, अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। सर नितिन गडकरी जी बैठे हैं सर, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई राजनाथ जी की अध्यक्षता में कि जाइए कश्मीर को आप लोग स्टडी करिए एंड गिव ए रिपोर्ट। 10 बार हम लोग कश्मीर गए थे। ये जो बार बार कश्मीर के दर्द की बात की जा रही है, कश्मीर की आवाज अलग अलग भी है। कश्मीरी पंडितों की बात पीड़ा की तो सही है, निकाला गया 370 के कारण। वहां मिले पहाड़ी मुसलमानों से,
उन्होंने कहा क्षमा करिए, हम पहाड़ी मुसलमान हैं, हमारे खानदान ने भारत की सेना को रास्ता दिखाया था, जो रास्ता पाकिस्तान को रोकने के लिए था। वहां मिले शिया मुसलमानों से, और वहां हम गए लद्दाख। कहां है वो लद्दाख का नौजवान? अभिनंदन तुम्हारा, बहुत बढ़िया बोले हो तुम। हम लद्दाख भी गए थे, कारगिल भी गए थे। तो कुछ तो ये आतंकवाद है। 370 डोडा भी गए थे। ये सब कुछ कहां है सर? वो भी राजौरी भी गए थे, मुझे याद आ रहा है। ये सब कहां है सर? बारामूला, अनंतनाग और सोपोर और डाउनटाउन श्रीनगर। तो आप उनकी आवाज सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार कश्मीर के एक एक अवाम की आवाज सुन रही है जो 370 के खिलाफ है। अब ये बताएं, क्या खोया क्या पाया, ये सवाल है। आज मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये आर्मी ऑफिसर उमर फयाज मारा गया, अपने भाई की शादी में गया था। प्राउड लेफ्टिनेंट, 5 महीना में उसने अपना खड़गवासला नाम कमाया था। 370 की वकालत करने वाले कोई भी नेता ने उमर के साथ खड़े होने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। ये मैं औरंगजेब मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा, जो राइफल में, कश्मीर राइफल में जवान था, उसको हमारी सरकार ने शौर्य चक्र दिया। क्या उसके साथ 370 की बात करने वाले खड़े हुए? मैं आज उसके फादर का अभिनंदन करूंगा। उसने कहा मेरा एक बेटा गया है, मेरे बाकी 2 बेटे भी सेना में जाएंगे, और आज दोनों बेटे ने सेना में जा गए। आज जब 370 खत्म हो रहा है तो इन सबों के चेहरे पर चमक है। हां, जो आतंकवाद की पैरवी करते हैं उनको परेशानी है। अब परिवारों की बात की गई। मिस्टर Shashi Tharoor, you talked eloquently on legislative despotism or something like that. All right, I can't speak that English of that caliber. I know my limitations. But, I remember a very famous cartoon. When emergency was imposed, the Honorable President was having a bath in the bathtub. And he said, at least spare me to take my bath. अभी ऑर्डिनेंस मत लाओ। हमने वैसा काम नहीं किया। आपने अपने इमरजेंसी पहले कर दी, कैबिनेट को बाद में बताया। ये आप भी जानते हैं, आपके नेताओं ने अपनी काट कथा लिखी है, हमसे जुबान न खुलवाइए, हम लोग इमरजेंसी के लड़ने वाले लोग हैं। और आपने इस इमरजेंसी, इस हाउस को बढ़ाया ही नहीं, इमरजेंसी के खिलाफ बोलने वाली सारी आवाज को बंद किया ताकि विरोध खामोश रहे। यह काम आपने किया था। इसलिए कृपा करके, इसलिए आप नहीं थे, लेकिन अपनी बात सच्चाई जानिए। मुलायम सिंह जी भी, यस, आप भी अंदर थे इमरजेंसी में। माय डीएमके फ्रेंड्स, यू आर आल्सो इनसाइड। योर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड, आई नो फॉर श्योर। अकाली दल के लोग कहां गए? आपके लोगों ने भी संघर्ष किया था, मुझे मालूम है। इसलिए कृपा करके, जी, इसलिए कृपा करके हमें जमहूरियत की नसीहत न दें थरूर साहब। ये मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहूंगा। हम लोग संघर्ष करके आए। लेकिन सर, आज मैं एक बड़े सवाल खड़ा करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी इसका क्या उपयोग होगा, कैसे होगा कश्मीर के लिए, वो पूरा रोड मैप देंगे। बट कैन वी डिनाई दिस फंडामेंटल फैक्ट that the abuse of 370 had become a vested interest? 50s में इसके खिलाफ आवाज उठती थी। सर, उस अपनी यात्रा में जो हम लोग गए थे तो हमने काफी चीजों को एग्जामिन किया सर, और कई कहानियां सामने आई। होटल की जमीन नहीं मिल सकती, लेकिन कम पैसे पर बड़ी जमीन ले ली, 40 लाख में, 30 लाख में, और उसको बाहर के आदमी को करोड़ों में दे दी बिना किसी ऑक्शन के, और आप उससे किराया ले रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़। आज 70। तो पार्लियामेंट में रविशंकर प्रसाद भी आर्टिकल 370 पर बहस के दौरान अपना मौकफ रखते हुए, और इस बीच एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पर आज भी 2 झंडे लहरा रहे हैं, जिसमें एक तिरंगा है तो दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा लेने के बाद सेक्रेटेरिएट पर सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा।
के सेक्रेटरीट पर लहराते ये दो झंडे, एक भारत का तिरंगा, दूसरा जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान जम्मू कश्मीर का झंडा। लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से धारा 370 को खत्म करने का फैसला ले लिया गया है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रेस्ट्रिक्शंस के बीच में, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के बीच में अब ये इतिहास बदलने जा रहा है और जल्द ही जम्मू कश्मीर के झंडे को या तो यहाँ से हटा दिया जाएगा या उसको नीचे कर दिया जाएगा, लेकिन तिरंगा यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है शुरू से कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर का विधान और जम्मू कश्मीर का जो झंडा है वो नहीं होना चाहिए। ये एक राष्ट्र है और उसके सभी राज्यों का एक ही दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में दो झंडों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दो संविधानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम, जिसका अब हम सब इस ऐतिहासिक कदम को होते हुए देख रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और हमारे साथ खुद मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, सीधे आपसे आपके जो जज्बात हैं, तासुरात हैं, वो हम जानना चाहेंगे। एक तारीखी लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं आप। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जहां एक तरफ राज्यसभा में कल 370 को लेकर डिबेट हुई थी, उसके बाद उसको पास करा लिया गया था, वहीं आज लोकसभा में बहस जारी है। इसी बीच हम जब आज श्रीनगर सिटी के बीचों बीच जो यहाँ पे सेक्रेटरीट है, जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट श्रीनगर में जो है, वहां पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर आज भी दोनों झंडे, एक तिरंगा और जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान जो है दूसरा झंडा, दोनों एक ही साथ एक ही लेवल पर लहरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 370 को खत्म करने का, और माना जा रहा है कि आज शाम तक ये पूरा कर लिया जाएगा, ये बहस पूरी कर ली जाएगी और लोकसभा से भी इसको पास करा लिया जाएगा। उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी कि जिस मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा ये कहती आई है कि हम दो निशान, दो संविधान और दो विधान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक देश के लिए कश्मीर भी जो है वो देश का हिस्सा है, तो ऐसे में यहाँ पर एक ही झंडा होना चाहिए जो कि तिरंगा होना चाहिए। तो ऐसे में ये एक तारीखी लम्हा है जहाँ पर हिस्ट्री बदल रही है और हम सब ये सब अपने आंखों से होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से जो नई सरकार आई है केंद्र में, पहले 6 महीने के अंदर ही उन्होंने 370 को हटाने का फैसला लिया है। उन्होंने कुछ फायदे भी गिनाए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हालात अभी ठीक नहीं है, यहाँ पे कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है। लेकिन इसके बीच तमाम चीजें बदल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां हो रही हैं, ग्राउंड पर तब्दीली होगी, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह होगी कि जो फ्लैग है जम्मू कश्मीर का, जो अपना फ्लैग है, वो अब यहाँ से या तो हटेगा या यूनियन टेरिटरी के तौर पर उस फ्लैग को रिटेन किया जा सकता है, जिसमें भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन तिरंगा जो है वो या तो एक अकेले तिरंगा रहेगा जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट पे, या फिर तिरंगा ऊंचा रहेगा और जम्मू कश्मीर जो अपना झंडा है वो हाइट में थोड़ा नीचे आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस कदम से ये एक बहुत ही मामूली सी चीज लगती है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जा रहा है कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बनाने की ये शुरुआत है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन को लेकर भी एक फैसला लिया गया है। तो कुल मिला के ये तमाम चीजें हम अपने आंखों के सामने होते देख रहे हैं। सोमवार सुबह 11 बजे से ये सब जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और आज शाम तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद प्रक्रिया यही है कि प्रेसिडेंट के पास जा सकता है और प्रेसिडेंट इसके बाद अपनी मोहर लगाएंगे, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगले 12 घंटे, अगले 15 घंटों के अंदर, यानी यूं कहिए कि कल सुबह तक हमें शायद ये इम्पैक्ट देखने को मिले, पूरे दुनिया के सामने ये होगा और पूरी दुनिया की नजर इस लम्हे पर है कि किस तरह से जो भारत की पार्लियामेंट है, भारत की संसद में किस तरह से बदलाव किया जा रहा है हिस्ट्री को लेकर। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त वहां पर किस तरह का हालात हैं, क्या कुछ नज़ारा है कि आपके कैमरे के जरिए हम अपने तमाम नाजरीन तक दिखा सकते हैं वो? हिना, मैं माफी चाहूंगा कि इस वक्त हम आपको बाहर का नजारा नहीं दिखा पाएंगे। बाहर इस वक्त कर्फ्यू है, हमारे होटल के बाहर ही डल लेक है जहां पर इस वक्त सुबह से रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हालांकि जिस एंड पे डाउनटाउन है उस इलाके में जो मेन नाका जो है वहां पर इस वक्त कुछ गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद, उनके आई कार्ड चेक करने के बाद, कर्फ्यू पास चेक करने के बाद, या अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी है उसके बाद ही उसको वहां से जाने दिया जा रहा है। कुछ रिलैक्सेशन हमको देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी पूरे शहर में सन्नाटा है।
सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये पूरा इलाका जो डल लेक के आसपास का है, यहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं है जो अब से कुछ दिन पहले यहाँ से वो चले गए थे। लेकिन वहीं रेस्ट्रिक्शंस सुबह भी बहुत सख्त थी, सुबह 7 बजे से ही, लेकिन अब शाम होते होते कुछ चहल पहल यहाँ पर दिख रही है। जो लोकल्स यहाँ पर आसपास में रहते हैं वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन हालात को देखते हुए आज कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि डाउनटाउन इलाके में कुछ जगह पथराव हुआ है। लेकिन हालात को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो जरूरत है, उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि नॉर्मलसी बनी रहे, वायलेंस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसी के लिए यहाँ पर शुरू से ही डिप्लॉयमेंट की गई थी फोर्सेस की। और आज हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार किस तरह से एक के बाद एक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस पर अपना रुख रख रहे हैं। कुछ पार्टीज अपोज कर रही हैं, कुछ पार्टीज इसको सपोर्ट कर रही हैं पार्लियामेंट में। हालांकि सारा एक्शन इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर कश्मीर में देखा जा सकता है। लेकिन इसमें शायद एक दिन का और वक्त लगे और कल सुबह तक हमें कुछ तब्दीलियां यहाँ पर शायद नजर आए। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, पल पल का अपडेट देने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि लगातार वहां के हालात